Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic types of blood circulation. So in last class we have discussed about circulatory system, types of circulatory system and functions of circulatory system, in which we discuss about what is arteries, what is vein, what are the functions of arteries, what is functions of veins, what is capillaries. Okay, so I hope that topic were clear and you are doing well. So come to the next point. Let's see what we will see today. Today we will discuss about double circulation, pulmonary circulation, systematic circulation and blood pressure and blood types of blood and composition of blood. Okay, so I will try to my best and I will explain in detail. You will also try to understand. Comes to the main. Let's see what is double circulation. So आपको पता है कि जो ह्यूमन का बॉडी है इट इज 4 चैम्बर. ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है 4 चैम्बर है. सो जो सर्कुलेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज ऑफ क्लोज टाइप. So in the human body blood circulate through the heart twice. Double circulation, the process in which blood circulate 2 times through heart, that is known as double circulation. Once it goes through the heart during pulmonary circulation and second time during systematic circulation. उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. वन साइड में ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में जाता है और सेकेंड टाइम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट में जाता है, यानी 2 टाइम्स ये हार्ट में पहुंचता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. हेंस सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. यू कैन सी हियर डबल सर्कुलेशन इन मैमल कैसे होते हैं. हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स. ये 3 क्या है मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम में. हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ये पूरे मिलके क्या बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. सो जो मैमेलियन में सर्कुलेशन प्लान होता है ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. और इसके बाद ये पूरे बॉडी में क्या होता है सर्कुलेट होता है. सो एज ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ये जितने भी हैं, जितने हम लोग लास्ट क्लासेस में 3-4 वीडियोज हमने देखा है, कहीं हमने हार्ट को डिस्क्राइब किया, कहीं ब्लड वेसल्स को डिस्क्राइब किया, एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द ब्लड. सो दिस combine to each other and form the circulatory system of human being. So simple सा definition है, the transportation of blood twice in heart that is known as double circulation. First is done by pulmonary circulation and second one by systematic circulation. So I hope these points are clear. Come to the next point. Let's see what is pulmonary circulation. So blood move from the heart to the lung and back to the heart. जो ब्लड है हार्ट से लंग में जाता है और फिर लंग से हार्ट में जाता है. सो वहाँ पे दिस टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज pulmonary circulation. If you are talking about the systematic circulation, blood move from heart to the rest part of the body and back to the heart. हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होना और फिर पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट में जाना दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट से लंग की तरफ और फिर लंग से हार्ट की तरफ बैक हो जाता है. ठीक है, वहां पे लंग में जाना है पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टमेटिक में हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर फिर से हार्ट में जाता है. सो दिस इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड ट्वाइस प्रोसेस is taken place during circulation या blood circulation process. So that's why it is known as double circulation. So I hope these points are clear. Come to the next. Let's see lymphatic system. So human being और vertebrate जिसमें बैकबोन होते हैं. lymphatic system जो होते हैं सब सिस्टम के जैसे वर्क करते हैं. सब सिस्टम या सब टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे वर्क करते हैं.
It has also a role to play in the transportation in human beings. Lymph is a special fluid that is known as tissue fluid. Lymph जो होता है एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसमें हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और ये जो होते हैं गैसेस, न्यूट्रिएंट और गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. दैट अकर्स थ्रू द ब्लड. जो ब्लड में CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, ये किसके द्वारा होता है? लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होता है. एनी एक्सेस फ्लूइड रिमेनिंग इन द सेल एंड टिश्यू इज कलेक्टेड बाय द लिम्फ एंड इट इज ड्रेन इनटू द वेन्स विच कैरी ब्लड. कोई भी एक्सेस फ्लूइड जो होते हैं वो टिश्यू के द्वारा लिम्फ में टिश्यू में लिम्फ के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं. कोई भी एक्सेस मटेरियल होता है वो टिश्यू के लिम्फ के द्वारा टिश्यू में कलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर इसको वेन में क्या कर दिया जाता है? ड्रेन कर दिया जाता है, ताकि जब ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो तो उस समय इसका भी सर्कुलेशन बॉडी में हो जाए. सो दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जब बहुत सारे लिम्फ या लिम्फ टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं और सर्कुलेशन फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं. सो दैट टाइप्स ऑफ सिस्टम इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम. So I hope these points are clear. Come to the next. Let's see what is blood pressure. So the pressure is generated by the blood when it flow through the blood vessels, that is known as blood pressure. जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में तो उस समय आपके वेन्स आर्टरी से कुछ प्रेशर एराइज होते हैं. जब ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज, और ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. तो जब ब्लड फ्लो करता है तो उस समय उस ब्लड वेसल्स के द्वारा कुछ प्रेशर एराइज होते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. तो ये जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर. The pressure adjusted on the wall of arteries when the heart is filling with the blood, that is known as diastolic pressure. जो प्रेशर आर्टरीज के द्वारा वॉल पे एराइज होते हैं, जो प्रेशर आर्टरीज के द्वारा वॉल पे एराइज होते हैं, दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. और इसमें जो होते हैं इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन आर्टरीज. इसमें जो होता है आर्टरी पे बहुत कम प्रेशर लगता है. और नॉर्मल रेंजेज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं 60 to 80 mmHg होता है, और ये आपका क्या है? यूनिट है किसका? ब्लड प्रेशर का. So pressure exerted on the wall of arteries when the heart is pumping, that is known as systolic pressure. जब आपका हार्ट बीट पंप कर रहा है और उस समय आर्टरीज के द्वारा जो प्रेशर एराइज होते हैं, जब आपका हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, ब्लड को पंपिंग कर रही है, हो रहा है. जब ब्लड पंप हो रहा है तो उस समय जो प्रेशर एराइज होता है आर्टरीज के द्वारा, उस दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. और यदि हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो उस समय जो प्रेशर एराइज होता है आर्टरी के द्वारा, जब हार्ट क्या है? ब्लड को ले रहा होता है, ब्लड को अपने अंदर ले रहा होता है, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. यानी सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जब ब्लड हार्ट के अंदर जाता है तो उस समय आर्टरीज के द्वारा प्रेशर एराइज होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. और जब हार्ट ब्लड को फेंकता है, पंपिंग करता है, तो उस समय आर्टरीज के द्वारा जो प्रेशर एराइज होते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और ये जो होते हैं मैक्सिमम प्रेशर एराइज यहाँ होता है. इसका जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है? 90 to 120 mmHg. ओके. सो डायस्टोलिक का कितना है? 60 to 80 और सिस्टोलिक का 90 to 120 mmHg. So I hope these points are clear. Come to the next. Let's see what is blood. So blood जो होते हैं एक कनेक्टिव सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसमें क्या क्या होता है? सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं. सो ब्लड इज मोस्टली लिक्विड विथ न्यूरस सेल्स एंड प्रोटीन सस्पेंडेड इन इट, मेकिंग ब्लड थिकर देन प्योर वाटर. ये क्या करते हैं? ब्लड को थिक बनाते हैं. देन ए लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा मेक अप टू हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द ब्लड. जो ब्लड में है 45% क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं. प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन दैट हेल्प ब्लड टू क्लॉट. प्लाज्मा जो होता है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. देन जो सबस्टांस होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है और सारे भी फंक्शंस को फुलफिल करता है. ब्लड प्लाज्मा आल्सो कंटेन ग्लूकोज एंड अदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स. तो प्लाज्मा जो है उसमें प्रोटीन होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, और उस प्रोटीन का क्या नाम है? फाइब्रिनोजन. ओके. देन ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, देन बॉडी के और फंक्शन है उसको भी फुलफिल करता है. सो जो ब्लड है
वो क्या होते हैं, ब्लड में कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे टिश्यूज में। डब्ल्यूबीसी होता है, वो क्या करता है, हमको फॉरेन सबस्टेंस से बचाता है, यानी हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि हम फॉरेन सबस्टेंस से फाइट कर सके। और जो प्लेटलेट होते हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। सो ब्लड इज कंडक्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स, arteries and vein. Blood is prevented from clotting in the blood vessels by their smoothness and finally turned balance of the clotting factor. जो ब्लड है वो क्या करता है, आर्टरीज और वेन के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ये ब्लड जो होता है ब्लड को क्लॉट होने से भी बचाता है, उसकी स्मूथनेस के कारण, सॉफ्टनेस के कारण, और ये क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्म में भी काम करता है। सो I hope these points are clear. Come to the point. Let's see. This is the blood. ब्लड में क्या क्या होते हैं, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, एंड ब्लड वेसल्स, दैट इज द आर्टरीज एंड वेन्स। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 7th. सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं भी समझ में आ रही हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन इट अगेन एंड अगेन. कम्स टू द लेट्स सी कंपोनेंट ऑफ ब्लड. सो ब्लड के जो कंपोनेंट है उसमें क्या है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है. जो प्लाज्मा है अभी मैंने बताया न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, और इट इज येलो लिक्विड होता है जो 55% पूरे ब्लड का होता है. यानी 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, और 45% पे आपका आरबीसी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होते हैं. आरबीसी का काम क्या है, फ्रेश ऑक्सीजन को पूरे बॉडी टिश्यू में पहुंचाना, और ये जो होते हैं 40 to 45% ब्लड का होता है. ओके, 40 to 45% आरबीसी पूरे ब्लड का होता है, 55% प्लाज्मा होता है, और 1% में तुम्हारा डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं. सो पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम फाइट में हेल्प करता है, वायरस को इन्फेक्ट डिटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से बचाता है. एंड देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स WBC and they make up less than 1% of blood. ये जो होते हैं 1% से भी कम होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो 55% प्लाज्मा हो गया, 40 to 45% आरबीसी हो गया, तो 1% से भी कम क्या होते हैं, WBC होते हैं, और 1% से कम क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, क्योंकि उनको पूरा 100% चाहिए. पूरा कंपोजिशन कितना होना, 100 है, तो जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो WBC और प्लेटलेट्स में, यानी 50-50, यानी 50% प्लेटलेट्स और 50%, आधा प्लेटलेट्स और आधा WBC. ओके, प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड को क्लॉट करने से बचाते हैं, और ये जो होते हैं 1% से भी कम होते हैं. यू कैन सी हियर प्लाज्मा 55%, प्लेटलेट्स एंड WBC 1%, 44% आरबीसी. तो जो प्लाज्मा होते हैं इसमें वाटर होता है, आयन होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट एंड गैसेज होते हैं, देन ग्लूकोज भी होता है. सो प्लीज गो थ्रू इट, लिसन इट केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू द नेक्स्ट. सो थैंक्स, stay safe and stay happy. Today we discuss about what is double circulation, what is the pulmonary circulation, what is the systematic circulation, what is blood, what are the components of blood, and how it helpful in fighting us and from foreign substances. So thanks, stay safe, stay happy, stay connected. Thank you. Have a good day.